What is production possibility curve? How to draw it? What is labeled on x and y axis? And what are its different shapes? What causes movement along the same PPC curve? And what shifts PPC curve completely to the right or completely to the left? If you are struggling with these concepts, then this video is for you. And at the end of this video, I'll also explain you what kind of questions generally come from this topic. So let's move to the whiteboard. Production possibility curve, PPC, and PPC is sometimes also known as PPF, that is production possibility curve, slash PPF, production possibility frontier, production possibility boundary, PPB, and we also call it opportunity cost curve. And another name for the same concept is transformation curve. So there are multiple 5 names concept, that is production possibility curve. Now let's have a look on the basic definition of this concept. Production possibility curve, as the name suggests, is this is a kind of graph, right? So what does PPC show? PPC is a kind of graph. What does that graph show? It shows production possibilities of two products. So this is a kind of graph that represents producer's behavior, and it represents how much quantity of two goods can be produced by the producer with his given amount of resources. So what is the basic like drawing of the graph? So you can have a look on this diagram. So we have to draw axis, and what we plot on x and what we plot on y. So keep in mind we have to plot two things, two products on these two axes. For example, यहाँ पे if you want to like produce cars, for example, if we are talking about Honda car company, then Honda car company may decide to produce Honda Civic cars, or it may decide to produce Honda City cars. So if there are two types of goods that producer has to decide on which good to produce less, then we can draw a PPC diagram. हमारे पास PPC डायग्राम की जो नॉर्मल शेप होती है, दैट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. सो दिस इज रियली सिंपल. यहाँ पे इसको ए लेबल कर दें. फॉर एग्जांपल दिस इज ओ ए एंड यू कैन लेबल बी हियर. सो ओ ए बी इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री. इट इज द कंप्लीट बाउंड्री ऑफ producers generally have. इससे हमें क्या पता चलता है कि this is the amount of resources, overall amount of resources including maybe land, labor, capital and everything that producers have. So अगर यहाँ पे इस ग्राफ के हिसाब से देखें, होंडा कार कंपनी अगर प्रोड्यूस करती है OA quantity of Honda Civic cars, then it will have to sacrifice OB quantity of city cars. So this is Honda City cars, right? So Honda City cars. What will be the opportunity cost here? We call this graph as opportunity cost curve as well. अगर हम OA quantity of Honda Civic cars बनाएंगे, तो इस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट जब आप चेक करेंगे तो Honda City cars जीरो होगी. मींस कि आप ये जो Honda City cars OB प्रोड्यूस कर सकते of them are sacrificed. So OA quantity of Honda Civic car को प्रोड्यूस करने की opportunity cost क्या होगी? OB quantity of Honda City cars. You can divide your resources between both the goods and you can choose combination C along the given PPC diagram. So यहाँ से जब हम perpendicular draw करेंगे, let's say we can produce 90 Honda Civic cars as well as we can produce let's say 100 Honda City cars as well. लेकिन अगर हमें जब Honda Civic car means we will have to produce more of Honda Civic cars, 90 से let's say 95 Honda Civic cars चाहिए. तो यहाँ से फिर आप कॉम्बिनेशन जाके चेक कर लें. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, PPC के along एक और पॉइंट D मिल जाएगा. इस पॉइंट को y एक्सिस के साथ कनेक्ट करेंगे तो Honda City cars की प्रोडक्शन 100 से नीचे आ गई, लेट्स से 80 होगी. सो इसकी एक्स्ट्रा 5 इसकी 20 कार्स आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगी. So 20 Honda City cars will be the opportunity cost if we move from point A to D. एक और important बात याद रखें कि अगर like there is movement along the same curve, जैसे यहाँ से point C से D तक हमने मूव किया,
तो सेम ग्राफ के अलोंग हमने मूव किया, इसको मूवमेंट अलोंग द सेम पीपीसी डायग्राम कहते हैं। क्या होती है रीजन की, what is the reason for movement along the same PPC? So there is only one reason for the movement along the same PPC, that is reallocation of resources from one product to another product. Mean we have already some resources and we could have used those resources to produce Honda City cars, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वहां से विदड्रॉ कर रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज विदड्रॉ कर रहे हैं जिसकी वजह से होंडा प्रोडक्शन कम हो रही है, और ये रिसोर्सेज हम कहाँ रीएलोकेट करें, होंडा सिविक कार की प्रोडक्शन के लिए। सो सी से डी तक मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व एंड दिस इज कॉज्ड बाय रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शिफ्ट इन पीपीसी। देखिए दिस इज बेसिक डायग्राम, इसमें बस मूवमेंट्स और शिफ्ट्स को आपने शो करना है व्हेनेवर देयर इज लाइक चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या चेंजेस आ जाएंगे। लेट्स से कि एक और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स आर द प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री, लाइक जैसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गई, और वाई पे हम ले रहे हैं एग्रीकल्चरल गुड्स, राइट। अगर हमारे पास रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज, तो पीपीसी डायग्राम में क्या चेंज आएगा। लेट्स से इनिशियल पीपीसी डायग्राम हमारे पास ये था ओ ए बी। अब अगर आपके पास रिसोर्सेज ओवरऑल इंक्रीज हो जाते हैं, क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाते हैं या क्वालिटी में इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज की ओवरऑल बाउंड्री इंक्रीज हो जाएगी। अगर ओवरऑल बाउंड्री इंक्रीज हो रही है तो पीपीसी डायग्राम मस्ट शिफ्ट टू द राइट, ए बी से सी डी की तरफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वांटिटीज कम हो रही हैं because of decrease in quantity and quality of resources for industrial as well as agricultural goods, तो PPC हमारा लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है। याद रखें आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज चेंज ना हो तो ट्रेड ऑफ को शो करेगा, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होगी, के लिए दूसरा आपको कम करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, राइटवर्ड मूव करे तो इट मींस कि यू कैन प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एज वेल एज एग्रीकल्चरल गुड्स। अब एक और चीज की तरफ आ जाते हैं। ऐसा तो तब पॉसिबल होगा जब आपके पास रिसोर्सेज दोनों चीजों के लिए इंक्रीज हुए तो इधर चला गया, डिक्रीज हुए तो इधर चला गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के रिसोर्सेज एट द सेम टाइम इंक्रीज, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक प्रोडक्ट के लिए आपके रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हो, दूसरे के कांस्टेंट हो, ठीक है। और इसी तरह दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी यही हो सकता है। अगेन यहाँ पे मैं एग्रीकल्चरल गुड्स ले रहा हूँ और यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स ले रहा हूँ। सो आपके पास ये इनिशियल पीपीसी डायग्राम है ओ ए बी। अब आपके पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए जो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए यूज होते थे, तो थोड़ा सा सोचिए कि अगर इंडस्ट्रियल गुड्स के रिसोर्सेज आपके पास इंक्रीज हो गए, एग्रीकल्चरल गुड्स के रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं है, सेम है, तो ग्राफ में क्या चेंज आना चाहिए। तो डेफिनेटली इसके रिसोर्सेज अगर सेम है तो इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेम रहेगी, इसके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब हम इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैज शिफ्टेड टू द राइट, यानी आप से रिलेटेड इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी आपके पास इंप्रूव कर गई या आपके पास लेबर ज़्यादा अवेलेबल है, मशीन ज़्यादा अवेलेबल है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज इंडस्ट्रियल गुड्स की बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम रिवर्स कर दें कि एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए अगेन हम उसी को कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए जो रिसोर्सेज थे वो डिप्लीट हो जाते हैं, क्वांटिटी में कम हो जाते हैं या कर जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल गुड्स की अगर लाइक टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाए तो फिर क्या होगा, इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। इट मींस कि इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इधर कहीं आ जाएगी। लेकिन एग्रीकल्चरल गुड्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में कोई चेंज नहीं है क्योंकि उसके रिसोर्सेज वही सेम रह रहे हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपका इधर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। I believe now you can easily imagine if there is no change in quantity and quality of resources for industrial goods, but there is change in quantity and quality of resources for agricultural goods. And what will be the change in graph? Let's say we have industrial goods here and we have agricultural goods here, right? So initial PPC diagram is OAB. अब अगर आपके पास रिसोर्सेज एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए डिप्लीट हो जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गए, नेचुरल डिजास्टर आ गए, वॉर्स हो गई,
फ्लड्स आ गए तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं। रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे, एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए सिर्फ डिप्लीट हो रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल गुड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इंडस्ट्रियल गुड्स पे कोई इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ा तो इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी। सो पीवीसी डायग्राम मस्ट शिफ्ट लाइक दिस।